एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिकोडेड, जिसमें हम बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की और मैं देती हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टिप्स एंड सजेशंस। तो जैसे कि टाइटल से क्लियर है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डेवलप reading habits in our children. I'm sure you will all agree with me that reading is the best habit your child can have and it is the best quality any person can possess. तो आगे बढ़ने से पहले हम ये पहले समझ लें कि why is reading important to us. So let's get started. Now let us talk about why is it important that we inculcate the reading habits in our children. The first very important reason is that reading helps to build the character of your child. चरित्र निर्माण में बुक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. Different values like honesty, sincerity, respecting others, sharing, caring, all these values can be inculcated through books. और कुछ ऐसी पंचतंत्र की जो बुक्स होती हैं, इसमें बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं with moral values. Parents can read these books for them, for their children at night. टीचर्स कैन रीड दी स्टोरीज और इन स्टोरीज के थ्रू हम ये वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है. The second very important reason why we should read books is it helps to improve the vocabulary of the children. उनकी vocabulary मतलब उनको new words पता चलते हैं जब वो books पढ़ते हैं और इन new words से उनकी language skills जो है वो improve होती हैं. तो it is very important that we read for them. Reading books is very important because it helps in improving the understanding of the child. जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ही वो लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, और ये उनको उनकी स्टडीज़ में भी ज़रूर हेल्प करेगा. तो रीडिंग इम्प्रूव्स understanding of the child. The next very important way in which reading helps the child is it triggers the imagination and creativity of the child. तो जब हम fairy tales पढ़ते हैं बच्चों के लिए या उनको वो books पढ़ने के लिए देते हैं like Cinderella and Snow White and all these Red Riding Hood, all these books, you know, they trigger the imagination of the child और इससे बच्चों की creativity जो है वो बढ़ती है. Next very important thing why we should encourage reading in children is that it helps in reducing the screen time. आजकल बच्चों की online studies चल रही हैं, as it is they are exposed to the screen most of the time, they are looking at the mobile screen या television. तो इस time पे best time है to introduce them to books, story books, good story books, और इन बच्चों का interest from cartoons and from movies आप थोड़ा books की तरफ ला सकते हैं. It is never too late to start. तो reduce the screen time through reading. And lastly, you know how reading helps is it helps to induce good sleep. तो अगर आप एक अच्छी बेड टाइम स्टोरी जब रात को बच्चे के लिए पढ़ते हैं तो उसके स्लीप पैटर्न्स भी बहुत इंप्रूव होते हैं, बच्चों को रात को अच्छी नींद आती है. बच्चे ही क्यों, अडल्ट्स भी जब रात को टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन में स्टेयर करने के बजाय अगर 2 पेज रीड करके सोएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी जो स्लीप है वो बेटर है. यू गो इनटू डीपर स्लीप, यू स्लीप properly, and reading helps in inducing sleep. So these are some of the important points regarding the importance of reading and why we should inculcate reading habits in children. So now we will talk about how we can inculcate these reading habits in our children. The first very important point is that we have to provide the environment for reading. तो environment for reading देने के लिए it is very important that एज अ फैमिली आपके पास एक रीडिंग टाइम हो, एक फिक्स टाइम हो जिसमें हर फैमिली मेम्बर बैठ के रीडिंग करे. तो इससे हम बच्चों में ये हैबिट बहुत इजीली इनकलकेट कर सकते हैं. The second very important way in which you can inculcate this habit is you gift books to your children. Instead of giving them toys and other things, it's more important that आप बच्चों को books gift दीजिए. और जब when they receive these colorful nice books from you, naturally their interest towards the books will be developed. The next very important thing is जब बच्चे छोटे हैं तो उनको ऐसे बुक दे के हम छोड़ तो नहीं सकते, so we have to read with the children. तो कोई भी अच्छी सी स्टोरी पिक कर लीजिए, बच्चों को चॉइस दीजिए कि आज कौन सी स्टोरी सुननी है, उनको 3-4 स्टोरीज की चॉइस दीजिए and then tell a nice story to them. So read with the children in the beginning and slowly and gradually the children will start reading themselves. The next very important point is you have to choose the books properly. Books should be interesting for the children. Books should be age appropriate.
एज के अकॉर्डिंग हमें बच्चों को बुक्स देनी है। छोटे हैं बच्चे तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होनी चाहिए, रिटन पार्ट थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं और लैंग्वेज उसकी थोड़ी डिफिकल्ट होती जाए, लेकिन जब छोटे बच्चे हैं द लैंग्वेज शुड बी वेरी इजी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप बुक्स सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले तो आप जब बच्चों का इंटरेस्ट बुक्स की तरफ ला रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को कुछ ऐसी कलरफुल और इंटरेस्टिंग बुक्स दीजिए जिससे का उनका इंटरेस्ट जो है वो बुक्स की तरफ डेवलप हो। मेरे पास ये एक बुक है, जैसे कि ये पॉपअप सिंड्रेला बुक। तो इस तरह की जब पॉपअप बुक्स होती हैं बच्चों को देखकर इतना इंटरेस्टिंग लगती हैं ये बुक्स। तो इस तरह की सबसे पहले तो आप बच्चों को कलरफुल अट्रैक्टिव पॉपअप बुक्स दे सकते हैं और धीरे धीरे फिर उनके अंदर रीडिंग हैबिट्स, बुक्स से प्यार बच्चों का जब डेवलप हो जाता है तो वी कैन introduce the other types of books to them. Next very important point is, as a family make reading, reading should be fun for the children. तो reading को आप जब बच्चों में introduce करें तो इतने enthusiasm, इतने excitement से introduce करें कि बच्चों को ये definitely लगना चाहिए कि reading is फन और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं जब हम बुक्स पढ़ेंगे। इससे हम बच्चों की तरफ बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बुक्स की तरफ डेवलप कर सकते हैं। देन आप अपने बच्चों की जब थोड़ी बुक्स, आपने छोटी सी लाइब्रेरी अगर अपने बच्चों की क्रिएट कर ली है तो गिव देम दिस आइडिया ऑफ एक्सचेंजिंग बुक्स विद देयर फ्रेंड्स। तो बच्चे एक्सचेंज करें बुक्स एक दूसरे के साथ और इससे हम बच्चों में न्यू बुक्स उनको मिल सकती हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके, एंड देयर इंटरेस्ट विल डेवलप एंड इट विल कीप ऑन डेवलपिंग टिल दिस रीडिंग हैबिट इज fully inculcated in them, and it will help definitely help your child in all the spheres of your life. As I said earlier, it is rightly said that readers are leaders. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लीडर्स बने तो हम उनको बुक्स से ज़रूर इंट्रोड्यूस करें। It is very rightly said, what exercise is to body, reading is to mind. तो जिस तरह से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, इसी तरह से अपने माइंड को अलर्ट और एक्टिव रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ अच्छी रीडिंग करें, अच्छी बुक्स पढ़ें। तो बच्चे ही क्यों, आज हम ये एज अडल्ट्स ऑल्सो डिसाइड करते हैं दैट एवरी डे वी आर गोइंग टू डू सम गुड रीडिंग और हम अच्छी मोटिवेशनल और कुछ अच्छी इस तरह की किताबें पढ़ें। और अगर हम ऐसा करेंगे डेफिनेटली इट विल चेंज आवर लाइफ। So let's get started from today. Happy reading to all of you. I'm going to see you next week. Till then, bye-bye.